Hello students, very good evening. Now I am going to deal with the principle of homogeneity. That means that today's our topic is uh, application of dimensional analysis. Look up at the board. Application of dimensional analysis. Okay, there are the three applications of dimensional analysis. The first one is to check the correctness of given physical relation. To check the correctness of given physical relation. To check the correctness of given physical relation. Second one, to convert unit of a physical quantity, to convert the unit of a physical quantity from one system to other. To convert the unit of a physical quantity from one system to other. Third one is the to develop a relation, formula, we can say formula between given physical quantities. These are the three important application which we are to discuss in the class 11th syllabus. These are the three applications. First one is to check the correctness of given physical relation, to convert unit of a physical quantity from one system to other, and to develop relation between given physical quantity. Before proceeding about these topics, one important topic we must know, which is the principle of homogeneity. Which is the principle of homogeneity. Principle of homogeneity states that the dimension of fundamental unit, that means MLT, in both sides of physical relation, must be same. In both sides of a physical relation must be same. The dimension of fundamental unit in both sides of a physical relation must be same. For example, let us have a relation in term of fundamental unit. Let us have a relation in term of fundamental units as m power a, l power b, t power c equal m power x, l power y and z power c. We can say t power z. If let us have a relation in terms of fundamental units. So according to principle, a must be equal to x, b must be equal to y and c must be equal to z. Continue करना है, ध्यान समझेंगे. Today we are to discuss about the one of the important section of the dimensional analysis which is covered in the class 11 syllabus. First one is to check the correctness of given relation, to convert unit of physical quantity from one system to other, and third one is to develop the relation between given physical quantity. Before proceeding these applications, the one principle
which is to be used in all these three. We can say this is the base of these three applications. The dimension of fundamental unit in both sides of physical relation must be same, known as the principle of homogeneity. Now, we are going to discuss one by one. Suppose we are to discuss the first one, to check the correctness of given physical relation. To check the correctness of given physical relation. How to check? Look up at the board. One thing, we are to do only one thing. What? If dimension of fundamental unit, that means MLT, in both side of formula are same, then given relation is dimensionally correct. Let us consider it, let us explain it in a very simpler way with the help of example. Suppose, if you deal with the example, the kinetic energy of a particle, of mass m moving with speed v, is given by kinetic energy equals half mv square. Check the correctness of this formula dimensionally. आप यह सब जानते हैं, क्लास 9 से हम ये फॉर्मूले से रूबरू हैं कि किसी भी पार्टिकल का जिसका मास स्मॉल m हो, अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी. पक्का पता है आपको? बट हियर इट इज आस्क्ड दैट चेक द करेक्टनेस डायमेंशनली. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठीक है, अच्छा है या बुरा है, आप ये नहीं जानते, आप डायमेंशनली से दिखाओ, सॉरी मतलब राइट है रॉन्ग है फॉर्मूला, ये आप नहीं जानते, आप इसको डायमेंशनली दिखाओ करेक्ट है कि नहीं. हमारी थीम क्या है? हम दोनों साइड का डायमेंशन रखेंगे. डायमेंशन मतलब क्या? पावर्स. दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे. अगर उनके पावर सेम आ गए तो ऑलराइट, बल्ले बल्ले. सपोज दैट एलएचएस क्या है? काइनेटिक एनर्जी. दैट मींस वर्क. दैट मींस व्हाट? फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस फंडामेंटल होता है जीएल. फोर्स का क्या होता है? फोर्स फंडामेंटल तो नहीं होता, बट हमने, अच्छा सपोज दैट फोर्स को आप क्या लिखते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डी. हमने ये कहा आपसे कि तब तक आप डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म में मत लिखिए जब तक आपके सारे क्वांटिटीज फंडामेंटल ना हो जाए. फंडामेंटल कौन? वो जो 7th है, लेंथ मास टाइम. फंडामेंटल कौन कौन होते हैं? लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डिस्कस्ड है ऑलरेडी पिछले वीडियोज में. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. अगर इन 7 में नहीं है तब तक आप मत रखिए उसको डायमेंशन फॉर्म में. मास तो फंडामेंटल है, क्लियर. डिस्टेंस मींस लेंथ फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल नहीं है. एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन को आप बोलते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू डी. अब ये टी फंडामेंटल हुआ. फंसा कौन? केवल वेलोसिटी की बात. अगेन वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? m अपॉन t इनटू डी कर दें. और वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे? लेंथ अपॉन टाइम इनटू डी. नाउ you can see this expression. All the terms in this expression is
out of 7 fundamental quantities. Now we are in position to write down it in the dimensional form. So we can say mass dimensional form is what? M, L, D is what? L, distance, upon time and time, we can say T2. So we get the expression ML2 T minus 2. This is the dimensional formula of LHS. Now we are to discuss about RHS. Half mv square. Half is what? Numerical constant, no dimensional value. And m is what? Mass, velocity, just we discussed above, Lt minus 1 square. We can say mL2 power to the power multiplied T minus 2. Look at here. This one and this one. Dimension of all the formulas आपसे m यहाँ भी power 1, यहाँ भी 1. L2, T minus 2. थी वही. Dimension of fundamental unit in both sides of formula are same. So given relation is dimensionally correct. So clearly the given relation is dimensionally correct. Clearly the given relation is dimensionally correct. So this is the proceedings to check the correctness of given relation. Simply let us explain this by considering another example. Let us explain it by considering another example. The time period of a simple pendulum of length L is given by T equal 2 pi under root L by G. Check the correctness of this formula. Check the correctness of this formula dimensionally. Check the correctness of this formula dimensionally. Now let us proceed. As we know, T equal 2 pi under L by G. हमारी थीम क्या है? LHS और RHS दोनों के को डायमेंशन फॉर्म में लिखें, फॉर्मूला टर्म में लिखें. अगर उनके पावर्स फंडामेंटल यूनिट्स के सेम आते हैं तो ऑलराइट. लिसन अगेन. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फार्मूले के टर्म में एक्सप्रेस करें. अगर आप यह पाते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं एम एल टी, उनके पावर्स दोनों साइड सेम आ रहे हैं, तो यह गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है. आइए चेक करते हैं. LHS is what? Time. T for time. Which the dimension formula of which is T. Now RHS 2 pi dimensionless numerical constant under root L by G means L is what? L. G is acceleration due to gravity. दुनिया कोई भी acceleration हो, Lt minus 2. भाई acceleration को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या बोलते हैं? लेंथ अपॉन टाइम. ये पूरा क्या आ गया? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल. हमने बताया है कि जब सारे टर्म फंडामेंटल हो जाएं तो डायमेंशनल फॉर्म रख दो L अपॉन T2, तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में जाएगा तो -2. यही होता है डायमेंशन एक्सेलरेशन का. तो कैसा भी एक्सेलरेशन डायमेंशन का क्या होगा? Lt -2 डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना. L अपॉन Lt -2, तो वी कैन से L कैंसल आउट, और ये आया, दिस वन इज द पावर 1/2 अंडर रूट मीन व्हाट? पावर 1/2. L कैंसल आउट. T -2, तो न्यूमरेटर में जाके T2 हो जाएगा, एंड पावर इज 1/, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई कैंसल आउट.
so we have the dimension formula too. Clearly आप देख लें, LHS में डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था T1, RHS का डायमेंशनल फार्मूला क्या है T1, तो टाइम का डायमेंशन पावर्स क्या है सेम, दैट्स ऑल. क्लियरली डायमेंशन इज फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. थीम पे ध्यान दीजिए ना, द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन बोथ साइड ऑफ फार्मूला आर सेम, देन गिवन रिलेशन इज करेक्ट. Clearly relation is dimensionally correct. Now term goes to consider about the another we can say application. The second application is what? Second application, to develop relation formula between given physical quantities. To develop a relation formula between given physical quantities. To develop a relation or formula between given physical quantities. Let us treat it with the help of example. easily आप इजीली समझ पाएंगे. एग्जांपल के थ्रू आगे चलते हैं. हमें केवल ये फैक्टर्स पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. जैसे चलो हम काइनेटिक एनर्जी वाला एक फॉर्म लेते हैं. ये तो आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हाफ mv² होता है. कैसे ये आया, ये डायमेंशनली इस रिश्ते को डायमेंशनली ये इनमें जो आपस में रिलेशन है मास और वेलोसिटी में, इनका जो रिलेशन है डायमेंशनली, इनको कैसे आप दिखाओगे, कैसे आपको लगा कि फॉर्म आना चाहिए. सपोज दैट the kinetic energy, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा आपको एग्जांपल के हेल्प से. ये एग्जांपल ले लिया मैंने. the kinetic energy of a particle of mass m and velocity v. The kinetic energy of a particle of mass m and velocity v is found to be depend upon the kinetic energy of a particle is found to be depend upon its mass and velocity v. Develop the relation between these. Develop a relation. आपसे ये कह दिया कि एक पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसा देखा गया कि उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. आप इनके बीच में रिलेशंस डेराइव करिए. ओके, लुक अप एट द बोर्ड. एक एग्जांपल सिंपली देख लेंगे तो आंसर क्या कर ले जाओगे. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is found to be depend upon its mass and velocity. Develop the relation. आइए इसमें सॉल्यूशन करते हैं. कैसे? we have kinetic energy E proportional to किस पर कर रहे हैं, मास पर और वेलोसिटी पर. ये गिवन है. क्वेश्चन खुद कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी भी, उसी को हमने प्रोपोर्शनल करके रख दिया. अब हमें क्या करना है, लेट मैंने ठीक कहा डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मास पावर a पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पावर b पर. ये मेरा स्टेट है, ध्यान देंगे. दिस इज द आवर स्टेट फ्यूजन. ये गिवन था, क्वेश्चन था, एनर्जी डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी लिख दिया मैंने अपने लिए एक नया प्रोसीडिंग क्या किया, अपने से क्या किया इस क्वेश्चन में. मैंने मान लिया ठीक है मास पर डिपेंड करता है, मास की समथिंग पावर और वेलोसिटी की समथिंग पावर डिपेंड करता है.
फिर E इक्वल टू के मास ए एंड वेलोसिटी बी। भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट पुट करते ही हैं, हो गया। ये मैंने डिराइव कर लिया। अब दोनों साइड की क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला रखिए। राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड क्वांटिटीज रखिए। एनर्जी का जस्ट आपने पीछे क्वेश्चन में देखा भी, mL2T-2 होता है, K होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, मास का m पावर a, वेलोसिटी का LT-1 पावर b। सारे पावर्स कलेक्ट कर लें। पावर्स कलेक्ट करें तो क्या आया, m पावर a, l पावर b, t पावर माइनस b। ओके, नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, which states that कि किसी भी फार्मूले में इक्वलिटी के दोनों तरफ के क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर इनके बीच में इक्वल लगा है तो जितना पावर राइट में सेम फंडामेंटल यूनिट्स पे है उतना ही पावर लेफ्ट में उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स पे होना चाहिए। मींस ए होना चाहिए 1 के इक्वल, ए इक्वल्स क्या 1। ये क्या है, अरे ये डायमेंशन पावर ऑफ m, ओके, एंड b मस्ट बी इक्वल टू 2। ये क्या है, डायमेंशन पावर ऑफ L भी वही है एंड T भी वही है, सेम तो है दोनों। तो A is 1 and B equal to putting in first क्या था, E equal to K M power A V power B। तो K M power 1 and V power 2। एक्सपेरिमेंटली अब फार्मूला तो आप जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो ये जो कांस्टेंट है उसको आप रख दीजिए। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू हाफ होती है, सो E इक्वल हाफ mv स्क्वायर। बताइए इजीली ये फॉर्मूला डेराइव हुआ कि नहीं हुआ। लुक एट द होल क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन। कंप्लीट क्वेश्चन के आंसरिंग को फिर से देखिए। गिवन क्या था, हिंदी में समझ लें। गिवन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। आप उनमें रिलेशन डेवलप करिए। ये गिवन था कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। हमने क्या किया, ठीक है आपकी बात से सहमत हूं, क्वेश्चन जो कह रहा है आई एग्री विद द क्वेश्चन। हमने एक स्टेप मान लिया कि ठीक है आप कह रहे हो कि मास और वेलोसिटी डिपेंड करता है, मैंने ये मान लिया कि मास पावर समथिंग एंड वेलोसिटी पावर समथिंग पर डिपेंड किया। तो E इक्वल टू के एम पावर ए बी पावर बी हुआ। राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड क्वांटिटीज, mL2T-2 m पावर a LT-1 पावर b। पावर्स हमने कलेक्ट किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया। अगर किसी भी डायमेंशनल फार्मूला का रिलेशन इक्वल है फिजिकल रिलेशन में, तो होमोजेनिटी ये कहती है कि उनके फंडामेंटल यूनिट्स के पावर सेम होने चाहिए। फंडामेंटल यूनिट के पावर m कितना है a, लेफ्ट में पावर m कितना है 1, मतलब a 1 होना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है। और b मस्ट बी इक्वल टू 2। हमने इन दोनों की वैल्यू जो आपने जो रिलेट किया था मैंने इसमें रख दिया m पावर 1 b पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये भी फाइनल सही है, के एम वी स्क्वायर भी सही है। अगर आपको पता तो है कि जैसे जो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है, केवल एक फॉर्मेलिटी के फॉर्म में आप इनको डेवलप कर रहे हो डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये बोल दो कि एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1/2 हम जानते हैं इसलिए ये हुआ। आपको अगर कुछ नए फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आप अननोन है तो ये लिखने की कोई नीड नहीं, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये देख लें। हम एक और एग्जांपल इसको आपको समझाते हैं, एक और एग्जांपल इसको समझाते हैं। देखिए, let us consider it with one more example। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी एप्लीकेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स
ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप सर्कुलर मोशन of a particle keep a particle in circular motion is found to be depend upon its mass m, velocity v and radius of circular path r. ठीक, ये कह दिया. सॉल्यूशन देखेंगे इजीली. मैंने कहा इस फॉर्मूले सब बिल्कुल समझ जाएंगे. और नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आपके एनसीईआरटी में तमाम पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं, चाहे वो प्रदीप हो, दिनेश हो, एसएल अरोरा हो, एचसी वर्मा हो, सिंगेज पब्लिकेशन हो, नगीन प्रकाशन हो, सारे बुक्स में सब दिया हुआ है, इजीली दिया हुआ है. जीआर बाटला हो. सॉल्यूशन हम देखते हैं. गिवन क्या है? गिवन है कि एक पार्टिकल के लिए जो फोर्स चाहिए वो डिपेंड करता है पार्टिकल के मास पर, उसकी वेलोसिटी पर, उसके रेडियस पर. ये गिवन है. ये गिवन है कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर. मैंने कर लिया. हमने क्या माना? लेट. मैंने कहा ठीक है, हम आपकी बात से एग्री हैं, डिपेंड करता है समथिंग पावर. मैंने मान लिया m पावर a, v पावर b, r पावर c. छोटा सा काम करना है आपको. जो गिवन है उसी के एग्री होते हुए आप केवल ये बोल दीजिए कि ये डिपेंड करता है मास पावर समथिंग, वेलोसिटी पावर समथिंग और रेडियस पावर समथिंग पे. तो आपने कहा कि ये F इक्वल्स के m पावर a, v पावर b, r पावर c. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूले रखिए. राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलेज. राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. फोर्स का क्या होता है पता है आपको? m l t माइनस 2. के का कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वो डायमेंशनल न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. m पावर a वेलोसिटी के लिए l t माइनस 1 पावर b. रेडियस क्या? टाइप ऑफ लेंथ ही तो है, l पावर c. What I did in the last question, मैंने किया क्या? सारे पावर्स कलेक्ट करें. m पावर a, l पावर b यहां से और एक l पावर c. सेम बेस पर पावर ऐड होते हैं, l पावर b प्लस c और t पावर माइनस b. ओके, बहुत सिंपल. ये गिवन था, हमने ये लेट किया. ठीक है भैया, आप कहते हो मास, वेलोसिटी, रेडियस डिपेंड करता है, एग्री विद यू. हम छोटी सी बात रखते हैं अपनी कि ये मास पावर समथिंग, वेलोसिटी पावर समथिंग और रेडियस पावर समथिंग पर डिपेंड करता है. F इक्वल के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे. नाउ दोनों साइड के क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूलेज रख दें. फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये बोले कि अगर डायमेंशन फॉर्मूले में रिलेशन होल्ड करता है इक्वालिटी का, इसका सीधा मतलब है कि सेम फंडामेंटल यूनिट के पावर्स जो होंगे वो सेम होंगी. मास पावर जो लेफ्ट में हो वही राइट में हो. डायमेंशन मतलब पावर. L के डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए, T के भी सेम होने चाहिए. रिलेशन बना ले. हो सकता है कभी कभी सॉल्व करना हो, कभी कभी इजीली इक्वल आ जाए. देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, A इक्वल्स व्हाट? 1. ये क्या है? पावर ऑफ डायमेंशन और वी कैन से पावर ऑफ m. b माइनस b पावर और वी कैन से b प्लस c इक्वल 1 पावर ऑफ l एंड माइनस b इक्वल -2 पावर या डायमेंशन ऑफ t.
लुक अप एट द बोर्ड सिंपली। तो फ्रॉम हियर क्या मिला आपको, सिंपली देखिए ना, a की वैल्यू 1i गुड, ये भी रिलेशन हो गया आपका। b कितना आ गया 2, अब तो इसलिए c कितना आएगा, वैल्यू पुट करिए, c आएगा -1। सिंपल। फ्रॉम फर्स्ट आपने क्या बोला, फोर्स आना चाहिए k, मास पावर a मतलब 1, वेलोसिटी पावर 2 और रेडियस पावर -1। फॉर्मूला आ गया mv²/r, k mv²/r, दैट्स ऑल द फाइनल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला मैंने कहा अगर आप जानते हैं कि k की वैल्यू 1 होती है इस फॉर्मूले में तो ठीक है लिख दीजिए, नहीं जानते तो ये फॉर्मूला राइट है आपका। तो ये रहा हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड एप्लीकेशन है, एक बार ध्यान से आप 2 मिनट लगेगा, लगातार कैमरा दिखाई रही है बोर्ड पर, आप समझ लें, इजीली समझ लें आप। Now let us move for the third application. Let us move for the third application. थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, में कन्वर्ट करना है यूनिट को, टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। बहुत सिंपली समझिएगा, हम आपसे कहें कि इस स्क्वायर से कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है, तो आप ये कहेंगे कि डिस्टेंस कॉलेज का है हमारा, डिस्टेंस इक्वल 2 किलोमीटर। ओके, इस प्लेस से, कोचिंग से, इस जो स्क्वायर चौराहे से वो कॉलेज का डिस्टेंस कितना, आप कहेंगे सर 2 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस को अगर हम बोल दें कि ये x है, क्वांटिटी को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं x से, करते भी हैं x से डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को हम x